Hello, my dear children. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing SST Class 8 and this is your book Time Travelers Unraveling History's Mysteries. So, children, today we are going to start with chapter number 1 of Civics and the name of the chapter is The Indian Constitution. So, let's start with the chapter. Here you have to unscramble the following words which are related to the Constitution of India. So Indian Constitution से related कुछ word यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि the first word is justice. Similarly, you have to fill the rest of the words here. When we are in a school, we follow the school rules, and on road we tend to follow the traffic lights or the traffic rules. So जब हम स्कूल में होते हैं, we follow the rules that are made for school, और जब हम रोड पे होते हैं, हम traffic rules को follow. Similarly, a country is governed by a set of rules. तो इसी तरीके से जो country है, उसमें भी कुछ rules बनते हैं जिसे हमें follow करने होते हैं. These set of rules are called the constitution और इन set of rules को ही हम constitution कहते हैं. The word constitution means an important law. So constitution का मतलब होता है कि important law. These laws may be written or unwritten. ये written भी हो सकते हैं और unwritten भी हो सकते हैं. A constitution consists of fundamental principles according to which a nation and a state are governed. So एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं जो नेशन या फिर स्टेट के अकॉर्डिंग होते हैं और कैसे उसे गवर्न करना है, ये चीजें इसमें लिखी होती है. नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है? देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई इट इज गुड फॉर अ कंट्री टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution of a country tells its citizens that kind of society they live in and what values their society upholds. So ये जो constitution है किसी भी country का, वो बताता है कि उस country की किस तरीके की society है जहाँ पे वहाँ के लोग रहते हैं और क्या क्या values हैं जो society carry on करती है, uphold करती है. It tells the citizens what type of government they have. ये भी बताती है कि किस तरीके की गवर्नमेंट है हमारी. It defines the power of the government so that the government cannot misuse its authority. ये जो है ये गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स हैं ये बताती है ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना कर सके. The Constitution defines the right of the citizens too. Citizens के क्या क्या right है ये भी Constitution में बताता है. So that they cannot break laws, exploit other citizens or be exploited by others. ताकि ये जो है laws को break ना कर सके, दूसरे citizens को exploit ना कर सके या दूसरे citizens से exploit ना हो पाए. Many constitutions have provisions that seek to prevent majority groups for violating the rights of the minority. So बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जिसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो माइनॉरिटी ग्रुप्स की आप कह सकते हो रक्षा करते हैं, उनकी जो राइट्स हैं वो उन्हें मिलते हैं ना. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है. सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स. दिस टेल्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. India has its own constitution. The constitution was framed by the Constitution Assembly and its members were elected by the members of the Provincial Legislative Assembly. So ये जो constitution है, Indian constitution, ये हमारा खुद का constitution है और इसे जो है Constitution Assembly ने बनाया था और इसके जो members हैं वो Legislative Assembly के लोग. When India gained independence, the Constituent Assembly served as the first parliament. जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसे फर्स्ट पार्लियामेंट का दर्जा दिया गया था. बी आर अम्बेडकर वाज चोजन to head the drafting committee of the Constituent Assembly.
सो बी आर अम्बेडकर को हेड बनाया गया था इस ड्राफ्टिंग कमेटी का। इन्होंने ही सब चीज़ें ड्राफ्ट की थी, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, इन्होंने ड्राफ्ट की। विच वॉज फॉर्म ऑन अगस्त 1947 को ये बना था। द ड्राफ्टिंग कमेटी took 3 years to complete the task of framing the constitution। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को कितने साल लगे थे? 3 साल लगे थे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। On 26 January 1950, the constitution was formally adopted। तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। What are the functions of the constitution? The constitution tells us about the basic nature of our society। ये हमारे सोसाइटी का नेचर बताता है and describes the ideals which are necessary and must be upheld at any cost। So ये डिस्क्राइब करते हैं ऐसे आइडियल्स को जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें जो अपहेल्ड किया जाए चाहे कोई भी कॉस्ट ना हो। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म। इसमें ये सारी बातें लिखी होती हैं कि कैसे गवर्नमेंट को बनाना है। हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजन। डिसीजन लेने की पावर किसके पास होगी और एंड ऑफ व्हाट काइंड, और किस तरीके की होगी। कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया आर मोनार्चियल। जैसे कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया ये मोनार्चियल गवर्नमेंट है यहाँ पे। वेयर द मोनार्च इज द डिसीजन मेकर। जहाँ पे जो मोनार्च है वो डिसीजन लेता है। Whereas countries like India are democratic। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे पीपल और सिटीजन ऑफ द कंट्री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जहाँ पे लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं to govern the country and to take decisions on their behalf। But at times such representatives can misuse their power and authority, which in turn can lead to injustice। Therefore, the Constitution provides a mechanism of safeguard against misuse of power and authority। So यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इसका मीनिंग ये है कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है खुद ही चूज कर सकते हैं, उन्हें जो है वोट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जीतने के बाद अपनी पावर का गलत इस्तेमाल। The fundamental rights are universally applicable to all the citizens of India। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एप्लीकेबल है जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उनके लिए एंड आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। और कोर्ट जो है इसे जो है एनफोर्स करती है। दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है अपनी अथॉरिटी को मिसयूज न करें तो इसके लिए हमें प्रोटेक्ट भी करती है। द राइट टू इक्वालिटी ग्रांट्स इक्वालिटी टू ऑल पर्सन। सो राइट टू इक्वालिटी है जो हर इंसान को इक्वालिटी ग्रांट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रेस, रीजन, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सो ये सारे जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे जो है फैक्टर्स इसमें कवर होते हैं राइट टू इक्वालिटी में। चाहे वो पर्सन किसी भी जेंडर का हो, कास्ट का हो, रीजन का हो या फिर रेस का हो, रिलीजन का हो या फिर प्लेस ऑफ बर्थ का हो, सबको इक्वली ट्रीट करना है। This right also ensures that no individual can be discriminated against on such grounds। So ये right बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। Right to equality is essential for all democratic societies। So ये जो right to equality है ये हर एक democratic society के लिए काफी important है। The Constitution prevents the tyranny of the majority over the minority। So जो constitution है prevent करता है tyranny majority का minority के ऊपर। Some people may use their wealth, status, belief or authority and start dominating members of their own community। So कुछ लोग जो है अपना wealth, status और belief या फिर authority को use करते हैं और अपने ही कम्युनिटी के मेंबर्स या फिर दूसरे कम्युनिटी के मेंबर्स को डोमिनेट करते हैं, मीन्स परेशान करते हैं। To safeguard its citizens against such misuse of power, the Constitution has provided for checks and balances। So इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए Constitution में बहुत सारे provisions हैं जो इन सब चीज़ों को चेक करता है और बैलेंस लाता है। The Constitution of India is the supreme law of the land। Constitution जो है इंडिया का वो supreme law है
land का and the source of all the powers. No law can be made in the country which goes against its basic structure. So कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता है किसी भी कंट्री में जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर से अलग हो. By this we can understand that the constitution protects us from the decisions which our representative make which could have a negative impact on the large principles that the country believes. So इस बात से हमें समझ में आता है कि अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कोई भी ऐसे लॉ बना देते हैं जो हमारे लोगों के खिलाफ है, जो किसी चीज़ को जो है बढ़ावा, किसी बुरी चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे डिसीजंस को माना नहीं जाएगा जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं हमारे कंट्री. The Constitution of India ensures that democracy sustains and survives by giving to its citizens the universal adult franchise. So Constitution जो है इंडिया का वो इस बात का ध्यान रखता है कि जो डेमोक्रेसी है वो सस्टेन करती है और सर्वाइव करती है by giving to its citizens the universal adult franchise. ये अपने जो adult franchise है उसे जो है अपने जो adults हैं उन्हें adult franchise देती है, though through which government come into power under the supervision of an independent election commission. So जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है पावर में आती है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की वजह से. Our constitution is the largest as well as the longest in the world. हमारा जो constitution है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे लंबा है and it comprises about these many words. 1,46,385 words. It has 444 article segments into 22 parts and 12 schedules with 118 amendments to date. Key features of the Constitution of India. So Indian Constitution के कुछ key features हैं. क्या है वो? Federalism. Federalism is a system of government. The power is divided between the central government and the state or regional government. So federalism एक system है जिसमें जो government है जहाँ पे जो पावर है उसे डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है. बोथ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैन एक्ट डायरेक्टली अपॉन द पीपल थ्रू द ऑफिशियल लॉ. सो जो इस केस में क्या होता है फेडरलिज्म में जो दोनों गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, दोनों का जो भी डिसीजन है वो पब्लिक को या फिर लोगों को मानना पड़ता है. इट इज ऑफिशियल. एंड इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल. हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे एज वेल एज एट द स्टेट लेवल पे. बोथ द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी एंड पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. इन थ्योरी बोथ गवर्नमेंट्स कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स इक्वली. सो दोनों ही गवर्नमेंट्स जो है अपनी पावर को इक्वली जो है प्रैक्टिस कर सकती हैं. बट इन प्रैक्टिस द स्टेट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन स्टेट का जो भी डिसीजन होगा वो सेंट्रल से ऊपर नहीं हो सकता. इन अ ट्रू फेडरेशन एज इन द केस ऑफ द यूएस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स, both entities, national and state governments are independent and each other, and states do not exist as subordinate units to the central government. अगर हम यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, तो यहाँ पे जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पे स्टेट और नेशनल दोनों ही हैं, दोनों ही इंडिविजुअल बॉडी की तरह वर्क करते हैं और दोनों का ही डिसीजन माना जाता है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं. बट हमारी कंट्री में अगर बात की जाए इंडिया में, तो द स्टेट गवर्नमेंट इज द सबऑर्डिनेट टू द national government. Now to the central government. India is not a true federation in this sense and is regarded as quasi federation. So India को quasi federation कहा जाता है, federal कहा जाता है. In its nature, the federal character of the Indian Constitution involves the three-way distribution of power between the national government and the states. So ये जो federal character है Indian Constitution का,
इसमें 3 वे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाती है। पावर यहाँ पे तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। This 3-way distribution is listed under the union list, the state list and the concurrent list. So ये जो 3-way distribution है इसे 3 parts में divide किया गया है and they are union, state and concurrent. The central government is given exclusive power to make laws on the items listed in the union. So जो central government है इसके पास कुछ exclusive power है, means कुछ अलग से powers हैं to make laws on the item listed in the union list. So union list में जो भी चीजें listed हैं उस पे ये जो है जो भी rules या फिर laws बना सकते हैं. The state can make laws on the item listed in the state list. So state list में जो भी item है उसके बारे में जो भी laws बनाने हैं वो state government बनाएंगे. And the third list called the concurrent list, both the center and the states can make law. लेकिन जब हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो इसमें चाहे तो स्टेट हो चाहे तो सेंटर हो, दोनों मिल के लॉ बनाते हैं. सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद. जो यूनियन लिस्ट है उसे जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. जो स्टेट लिस्ट है उसे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसे दोनों गवर्नमेंट मिलके बनाती है. While each state is in India enjoys autonomy in exercising powers or certain issues. So जितने भी states हैं इंडिया में सब जो है enjoy करते हैं autonomy in exercising powers on certain issues subject to national concern, require that all states follow the law of central government. So जो भी states हैं वो सारे क्या करते हैं, जो भी central government के laws हैं उन्हें follow करते हैं. In case of any overlap or of interest in any matter in the list, the authority of the central government prevails. So अगर जो है overlap की बात की जाए तो ऐसे केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा है. This makes the central government more powerful than the state government, और जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है. Parliamentary form of government. India has adopted the parliamentary form of government in which people elect their representative. So India में ये इस टाइप की गवर्नमेंट को जो है फॉलो किया था जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करते हैं. Furthermore, every citizen is free to contest election irrespective of his or her social or economic status. So हर एक सिटीजन को ये फ्रीडम दी जाती है कि वो इन इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकता है, उसमें वोटिंग भी कर सकता है, भले वो किसी भी सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस का हो. देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द हेड स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट. सो हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कुछ जो डिफरेंसेस हैं. The head of state usually refers to the nominal head like the president of India. So head of state जो होता है वो president of India होता है, in whose name the country is governed, जिसके नाम पे country जो है चलती है. Such a head may be elected directly or indirectly unlike the constitutional monarch. ऐसा जो head है वो या तो directly भी elect किया जा सकता है या indirectly भी elect किया जा सकता है, जैसे कि ब्रिटेन में किया जाता है. Where the head of state, the king or the queen, has a hereditary position. लेकिन जो head of state होता है उसकी जो position होती है वो hereditary होता है. And in India, the ruling government is headed by the prime minister. और जो ruling government है वहाँ पे prime minister की post होती है along with his or her council of ministers. So यहाँ पे जो prime minister है वो अपने council of ministers के साथ रहते हैं, work करते हैं. Now, 3 organs of government and the system of checks and balances. The government carries out its work with the help of 3 main organs. Government अपना जो भी काम करती है इन 3 main organs से करती है. The executive, the legislative and the judiciary. So ये 3 टाइप की चीजें हैं जिसकी वजह से ही जो 3 organs हैं गवर्नमेंट के. The executive is responsible for governance and administration. जो executive है उसका काम है governance or administration. The president, vice president
Prime Minister and the Council of Ministers form the executive branch in India. So ये सारे जो members हैं ये सारे जो हैं executive branch में आते हैं. Now the legislative refers to the number of Lok Sabha and the Rajya Sabha. So जो भी लोग हैं लोक सभा या फिर राज्यसभा में वो सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में आते हैं. The judiciary, which comprises the Supreme Court, the High Courts and the District Court. अब जो judiciary है उसमें ये तीनों courts आते हैं. Is involved in the interpretation of law. ये सब जो है laws के interpretation में help करते हैं. All three branches are required to run the state smoothly and effectively. अगर आप चाहते हो कि स्टेट को इफेक्टिवली चलाया जाता तो तीनों ब्रांचेस का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है. In order to ensure that no branch of government has unlimited power over the other, each organ acts as a check on the other and ensures balance of power between all the three. So ये देखने के लिए कि जो गवर्नमेंट है वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर ऐसा ना हो कि किसी एक गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी जाए. तो इसलिए जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, दूसरे गवर्नमेंट को चेक करती है, जिसके बाद जो पावर है सबके अंदर आसानी से बट जाता है. फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. सो क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के. तो फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज दे एंश्योर द बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन. सो ये जो फंडामेंटल राइट है ये जो इंक्लूड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इट इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन. जो भी इंडियन सिटीजन है उन सबका ये बेसिक राइट है. ऑल सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, religion, caste or sex have been given the right to move the courts for the enforcement of the fundamental right. So person अगर वो किसी भी रेस, कास्ट, क्रीड या फिर सेक्स या फिर रिलीजन का हो, उसे जो है ये जो है उसकी इट्स हिज राइट, ये उसका राइट है कि वो कोर्ट में कभी भी जा सकता है अपने राइट्स के लिए. They primarily protect individuals from an attributed state action. The fundamental rights include. अब क्या क्या चीजें हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर. राइट टू इक्वालिटी, हर किसी को इक्वालिटी का अधिकार है. All persons are equal before the law. This means all the persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizens can be determined against on the basis of the religion, caste or sex. सो राइट टू इक्वालिटी कहता है कि हर कोई, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी क्रीड का हो, या फिर किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स का हो, हर एक इंसान वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है और हर कोई इक्वल है. एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. हर किसी को हर जगह जाने की अनुमति है, चाहे वो कोई शॉप हो, चाहे वो कोई टेम्पल हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, कुछ भी हो. एंड द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है किस मैटर में, इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक. सो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं राइट टू इक्वालिटी के, वो हम आगे पढ़ेंगे. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन ऑल्सो बीन अबॉलिश्ड. और इसके बाद क्या हुआ, राइट टू इक्वालिटी के बाद जो अनटचेबिलिटी थी उसे जो पूरी तरह जो है खत्म किया जा सका. नाउ द नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. हर किसी को आज़ादी का अधिकार है. That includes the right to freedom of speech and expression. So किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना, कोई जो है किसी भी तरीके का कोई स्पीच देना या फिर एक्सप्रेशन देना, ये सब राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है. द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली. किसी तरीके का एसोसिएशन बना लेना या किसी भी तरीके का कह सकते हो आप कि फ्रीली घूम लेना, ये सारी चीजें राइट टू फ्रीडम में आते हैं. एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस. और भले ही इंसान किसी भी कंट्री में हो, किसी भी जगह में हो, वो इन सब चीजों को खुद ही फॉलो कर सकता है. नाउ द थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. अब एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, किसी इंसान को या किसी भी चीज को जो है
आप लो और उसे बार बार प्रताड़ित करो, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉन्स्टिट्यूशन बंद करता है। forced labor, forced labor and employment of children under 14 years of age. So इन सब चीज़ों को एक्सप्लॉयटेशन के अंदर रखा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि लोगों को अगवा कर ले जाना, कहीं पे ले जाके उनके बॉडी पार्ट्स भेज देना या फिर उन्हें भीख मांगने में मजबूर करना, इसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। फोर्स्ड लेबर का मतलब किसी से जबरदस्ती आप जो है अपने घर का काम करवा रहे हो या कहीं का भी काम करवा रहे हो, उसे फोर्स्ड लेबर कहा जाता है और उसे पैसे भी नहीं देंगे। और जो आगे लिखा है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर से कम एज वाले बच्चों को आप जो है जो चाइल्ड लेबर का रमीज कहीं ले जाके मेहनत करवा रहे हो, उनसे पैसे कमवा रहे हो। तो दीज ऑल कम इनटू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नाउ द नेक्स्ट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो रिलीजन का फ्रीडम जो है हर किसी को, राइट रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। सो ये जो रिलीजियस फ्रीडम है हर सिटीजन को मिलता है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस, हर एक पर्सन का ये राइट होता है प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का, कोई भी रिलीजन अपने चॉइस का, अपने हिसाब से इंसान अपने रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो क्या क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटी, रिलीजियस and all linguistic can step up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. So ऐसा जो है राइट दिया गया है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, जो है ऐसा कोई भी पर्सन, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो या फिर कैसी भी भाषा हो, ऐसे हर कोई इंसान एक अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकता है और ताकि वो अपने कल्चर को वहाँ पे प्रिजर्व कर सके। नाउ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज क्या है? दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कंट्री इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। सो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला जो राइट है ये कहता है कि जो भी इंडिविजुअल है सबको ये आज़ादी है ताकि वो मूव कर सकें कोर्ट की तरफ, और अगर उन्हें लगता है कि उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसे किसी भी स्टेट ने तोड़ा है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट। सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये डायरेक्टिव्स है गवर्नमेंट के विच इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंश्योर करता है। These help the government to take steps to work for the nation's growth. So इन सारी चीज़ों को देख के हम बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वर्क करे नेशन के ग्रोथ में। The directive principles provide for equal pay for equal work. So ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये इक्वल पे प्रोवाइड करते हैं इक्वल वर्क के लिए। The right to educate means of livelihood, to set up village panchayat and to protect themselves and wildlife monuments of national park. So ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये कहता है इक्वल पे मिलना चाहिए, हर एक वर्क के लिए इक्वल पे मिलना चाहिए, और जो है राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सो लाइवलीहुड के लिए जो मीन्स है वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेट होने चाहिए, मीन्स इंसान अच्छे से अपने घर का गुजर बसर कर सके। टू सेट अप विलेज पंचायत को सेट कर सके, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एज वाइल्ड लाइफ एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेचुरल इम्पोर्टेंस। सो ताकि जो है अपने को वो प्रेजेंट कर सके कि वो कोई मॉन्यूमेंट है या फिर कोई ऐसी जगह जो नेशनल इम्पोर्टेंस की। नेक्स्ट इज सेकुलरिज्म। A secular state is one in which the state does not officially promote any religion and the state religion. So a secular state वो होता है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके का रिलीजन के बारे में प्रमोशन नहीं कर रही है, एंड द स्टेट रिलीजन, और ना ही किसी स्टेट रिलीजन के बारे में वो बोल रही है। इन इंडिया सेकुलरिज्म कैन बी अंडरस्टूड एज treating all
religions equal and with respect. सो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो सेकुलरिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है इजली लोगों को पता है कि किसी भी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट के साथ ही देखना चाहिए. वी विल रीड more about this in the following chapter. Now let's learn about the drafting the constitution. So here you can see the picture. First day of the Constitution Assembly in India, December 1946. So December 1946 में जो पहला Constitution Assembly held की गई थी, this is a picture of that. The Constitution Assembly, consisting of indirectly elected representatives, was set up for the purpose of drafting the constitution in the undivided India. So जो Constitution Assembly है इसके अंदर जो है कुछ ऐसे representatives हैं जो indirectly elected है and was set up for the purpose of drafting a constitution for undivided India. और ये जो इन लोगों को सेटअप किया गया था ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसे ड्राफ्ट कर सके. The assembly met for the first time in New Delhi on 9 December 1946. So ये जो असेंबली है ये पहली बार जब न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुई थी और 9 December 1946 को स्टार्ट हुई थी. The last session of the assembly was held in the November 1949. और इस असेंबली का जो लास्ट सेशन था, जो लास्ट एंडिंग सेशन था, वो था November 1949. Drafting the constitution for a huge and diverse country like India was not very easy. So Indian constitution को ड्राफ्ट करना काफी ज़्यादा easy नहीं था. The long authorians ruled under the British has convinced, जो long authorians थे, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स के अंदर काम करे थे उन्होंने कन्विंस किया. They have convinced our leaders as well as the people that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in governance. So उन लोगों ने बताया कि हमारे लीडर्स को कि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्री इंडिया होना चाहिए जिसमें जो है लोग जो है इन्हें इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए and be allowed to participate in governance. Governance में इन्हें participate करते देना चाहिए. Thus, India's freedom struggle was not merely a struggle against the foreign rule. तो इसी तरीके से जो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं था, फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था किसी फॉरेन रूल के खिलाफ. It was also a struggle to rejuvenate our country and transform our society and politics. So ये एक स्ट्रगल था जिसमें हम अपनी कंट्री को रिजुविनेट कर सकते थे, फिर से नया कर सकते थे और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को या सोसाइटी को जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते. So now children, let's do the question answer here. You have to answer the questions that are given here. How does the constitution prevent the tyranny of the government? So constitution कैसे prevent करता है इसे? Differentiate between fundamental rights and this directive principles of state policy. So you have to write the difference between the two. What do you understand as secularism? Secularism का क्या है? Why is India said to be quasi federal? So India को quasi federal क्यों कहा जाता है? What do you understand by parliamentary form of government? So आप पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होती है गवर्नमेंट की उससे क्या समझते हैं? Why do we need a constitution? So a constitution is needed so that the rules of the candidates or the individuals cannot be violated and the government, whichever government is running there, it can easily and smoothly run and cannot violate the rules. Constitution serves several purposes. Constitution के बहुत सारे purposes हैं. We have to discuss. What are the main features of the Constitution of India? Constitution, Indian Constitution के क्या क्या main features हैं? This is to be written. What were the major challenges before the Constitution Assembly?
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से पहले क्या क्या challenges थे? This is to be written and explain the federal division of power in India. So children, you have to complete these questions on your own. I hope that you have understood the chapter and you have to read it again so that you can easily complete the exercises. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay with it.